ایک دفعہ سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ اپنے قافلے کے ساتھ اور وزیر ابن یوسف کے ہمراہ ایک قبرستان میں سے گزرے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک قبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے زور زور سے رو رہے تھے۔ نہ کوئی جنازہ ہے، نہ کوئی قبر کے اندر کسی میت کو دفن کر کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں۔ سلطان عبدالحمید نے حقیقت جاننے کے لیے یہاں ایسا کیا ہوا ہے، سب لوگ اکٹھے بیٹھے رو رہے ہیں، ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ سب خیریت تو ہے؟ ایک شخص نے کہا، سلطان معظم، 5 دن پہلے ہم نے یہاں پر ایک پہلوان کو دفن کیا تھا، لیکن اب اس کی لاش قبر سے غائب ہو چکی ہے، اندر موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان عبدالحمید کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اور پوچھ گچھ کے بعد مرحوم پہلوان کے ماں نے ایسی بات بتائی کہ سلطان سمجھ گئے اور کہا کہ اس قبر کے اندر خدا نخواستہ اگر میرے سگے بیٹے کی بھی میت دفن ہوتی تو وہ بھی نہیں ملنی تھی۔ اس پہلوان کی لاش اس قبر کے اندر 3 دن تک ہی رہ سکتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا مطلب سلطان معظم؟ تو سلطان عبدالحمید نے اچانک ایک دفعہ سلطان عبدالحمید کی عدالت میں ایک انتہائی عجیب اور دلفراز مقدمہ آیا، اور تاریخ میں سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ان کی زندگی میں پیش آنے والا پہلا انتہائی حساس اور مشکل ترین مقدمہ تھا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے، ایک 12 سالہ نوجوان کو پکڑے ہوئے پورا قبیلہ سلطان معظم کی عدالت میں حاضر ہوا۔ سلطان کے وزیر ابن یوسف نے سمجھا کہ شاید اس نوجوان نے کوئی چوری کی ہے جس کی وجہ سے پورا قبیلہ اسے پکڑ کر لے آیا ہے۔ اس وقت سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں موجود نہ تھے۔ جب ابن یوسف نے ان تمام لوگوں سے اس 12 سالہ لڑکے کو پکڑنے کی وجہ پوچھی تو ایک بزرگ کافی غصے سے بولا کہ اب سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ کو بلائیں۔ ابن یوسف نے کہا کہ سلطان آتے ہی ہوں گے، لیکن کام مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ میں حل کر دوں۔ تو ایک اور شخص نے کہا کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں، اور ویسے بھی یہ مقدمہ ہم سلطان کے سامنے ہی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ابن یوسف کے بہت کہنے کے باوجود ان لوگوں نے ابن یوسف کو کچھ نہ بتایا اور سلطان کا انتظار کرنے لگے۔ ابن یوسف نے قبیلے کے تمام لوگوں کو اور اس 12 سالہ نوجوان کو جس کو یہ تمام قبیلے والے پکڑے ہوئے تھے، ان سب سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے، آپ کے لیے کھانا منگواتا ہوں۔ تو وہی بوڑھی اماں غصے سے بولی، ہم یہاں کھانا کھانے نہیں آئے، آپ جلدی سے سلطان کو بلائیں۔ ابن یوسف بڑا حیران ہوا کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ یہ لوگ تھوڑی دیر کا انتظار بھی نہیں کر رہے اور کچھ کھا پی بھی نہیں رہے۔ ابن یوسف نے نہایت نرم لہجے سے اس بزرگ سے پوچھا، آپ اتنا غصہ کس بات کا کر رہی ہیں؟ مجھے بتائیے تو صحیح، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو وہ بوڑھی بڑے ہی افسردہ انداز میں کہنے لگی کہ میری حویلی پر ماتم بچھا ہوا ہے اور ہم سب قبیلے والے 5 دن سفر کرنے کے بعد آج سلطان کی عدالت میں پہنچے ہیں۔ ابن یوسف نے پوچھا، ایسا کیا ہوا کہ آپ کی حویلی پر ماتم بچھا ہوا ہے؟ تو پھر ایک اور آدمی بولا کہ ان کے بیٹے کو 12 سالہ نوجوان نے قتل کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ابن یوسف کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ ایک چھوٹی سی عمر کا معصوم سا لڑکا کیسے کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ ابن یوسف کو اس لڑکے کی عمر شکل دیکھ کر اس بات کا یقین ہرگز نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکا قتل بھی کر سکتا ہے۔ اچانک سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ بھی عدالت میں آ گئے۔ جب سلطان نے ابن یوسف کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہوا ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ تو ابن یوسف نے کہا کہ سلطان معظم، آپ اس بزرگ اور قبیلے والوں سے تفصیل سے پوچھیے، کیونکہ میں تو حیران ہو چکا ہوں اور میں آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھا پاؤں گا۔ سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ ایسا کیا ماجرا ہو گیا ہے۔ پھر سلطان نے ان قبیلے والوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے اس لڑکے کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ پھر وہ بزرگ بولا کہ سلطان معظم، اس نے میرے بیٹے کا قتل کیا ہے اور میں 5 دن کی مسافت طے کر کے آپ تمام قبیلے والوں کے ساتھ مل کر اسے پکڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس عدالت میں مجھے انصاف ملے گا۔ اگر میں چاہتی تو میں اس لڑکے کو وہیں پر قتل کر دیتی، لیکن میں اپنے ہاتھ کے کسی کے خون سے رنگنا نہیں چاہتی، چونکہ جب تک ہماری سلطنت میں آپ جیسا سلطان جو کہ اسلام اور شریعت کے مطابق ہر فیصلہ کرتا ہے، اس کے لیے میں اپنے بیٹے کے قاتل کو پکڑ کر آپ کی عدالت میں حاضر ہو چکی ہوں۔ سلطان نے اس 12 سالہ نوجوان لڑکے سے پوچھا کہ تم نے اس بزرگ کے بیٹے کو قتل کیا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا، ہاں
जी सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने अपने मालिक का कत्ल किया है। ये सुनकर इब्न यूसुफ और सुल्तान अब्दुल मजीद रहमतुल्लाह अलैह और ज्यादा हैरान हुए कि इसने अपने मालिक का कत्ल क्यों और कैसे किया। सुल्तान ने उस लड़के से पूछा कि तुमने अपने मालिक के पास क्या करते थे और तूने उसका कत्ल क्यों किया है। उस नौजवान लड़के ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे इस बुजुर्ग के बेटे यानी कि मेरे मालिक के पास काम करते हुए 2 माह हो चुके थे। ये बुजुर्ग अम्मा तो घर रहती थी, जबकि उनका बेटा अक्सर औकात हवेली पे रहता था और मैं अपने मालिक के साथ उसके मवेशियों को चारा डालता और उसके घोड़ों की देखभाल किया करता था। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता था और अपने मालिक का हर हुक्म बजा लाता था। मैं जब सो भी रहा होता, अगर मेरे मालिक मुझे आवाज़ देता तो मैं फौरन जाग जाता और कई बार ऐसा हुआ कि मैं सारी सारी रात अपने मालिक के कहने पर काम करता। हालांकि मेरे मालिक के साथ ये मुआहदा हुआ था कि मैं सुबह तुलू आफ्ताब से लेकर शाम असर तक काम करूंगा। इसके बाद वह मुझे कोई काम ना कहेगा और न मैं काम करने का पाबंद हूँ। लेकिन इसके बावजूद मेरे मालिक को जब भी मेरी ज़रूरत पड़ी, चाहे वो सुबह का वक्त हो या रात का, मैं हाजिर हुआ। सुल्तान मुअज़्ज़म, जब मेरा 1 महीना पूरा हो गया तो मैंने अपने मालिक से कहा कि 1 माह गुजर चुका है, अब मुझे मेरी तनख्वाह दे दो, जो कि 100 दिनार थी। तब मेरे मालिक ने कहा, 1 दिन बाद मैं तुझे तेरी उजरत दूंगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं खामोश हो गया और अपने मालिक का काम काज करता रहा। मेरा मालिक मुझे रकम देता कि बाजार से फलां फलां चीज़ें ले आओ। मैं चुपचाप जाता और चीज़ें लाकर एक एक दिरहम का अपने मालिक को हिसाब देता और कभी मैंने अपने मालिक के 1 दिनार की भी बेचौरी नहीं की। सुल्तान मुअज़्ज़म, जब मैं 1 दिन बाद अपने मालिक के पास शाम के वक्त अपनी उजरत लेने के लिए गया तो मेरे मालिक ने अपने कमरे का दरवाज़ा ही न खोला और मैं सारी रात अपने मालिक के कमरे का दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करता रहा। सुबह जब मेरे मालिक के कमरे का दरवाज़ा खुला तो उसके कमरे में से मेरा मालिक और एक लड़का भी निकला। मुझे मेरी तनख्वाह भूल गई और मैं उन दोनों को देखकर बड़ा हैरान था, क्योंकि ये दोनों ही नशे में थे। मुख्तसर ये कि वो लड़का अपने घर चला गया और मैं अपने मालिक से अपनी तनख्वाह मांगने लगा। लेकिन मेरे मालिक ने मुझसे कहा, तुम अगले महीने 2 महीनों की तनख्वाह इकट्ठे ले लेना। सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे गुस्सा तब आया जब मेरा मालिक दूसरे लड़के को, जो रात को उसके कमरे में से उसके साथ सोया था, उसको मेरे सामने उसने 50 दिनार दिए, जबकि मुझे मेरी हक हलाल की कमाई तय किए गए मुकर्रर वक्त पर ना दी गई। मैंने मालिक की बहुत मेहनत से माजत की। मुझे रकम की ज़रूरत है। मालिक ने गुस्से से कहा, तुझे सुनाई नहीं देता? तुझसे कहा है ना कि तुझे अगले महीने इकट्ठी तनख्वाह दे दूंगा। ये कहते ही मेरा मालिक हवेली से निकलकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और चला गया। सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन मैं मजबूर था और कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की ज़्यादा थी कि वो लड़का उसके कमरे में सारी रात क्या करता रहा, चूँकि मैंने उसको पहले कभी इसके साथ नहीं देखा था। और ज़्यादा गुस्सा मुझे इस बात पे आया कि बजाय मुझे मेरी महीने की तनख्वाह देने के, उसने मेरे सामने उस लड़के को 50 दिनार दिए, जबकि मुझे फिर अगले महीने का वादा किया। खैर, मैं काम करता रहा और हत्ता कि अगला महीना भी आ गया, यानी कि आज से 5 दिन पहले मुझे पूरे 2 माह हो चुके हैं अपने मालिक के पास काम करते हुए। जब सुबह मवेशियों का चारा करके फारिग हुआ तो मेरा मालिक घोड़े पर सवार होकर कहीं जाने लगा। तो मैंने उससे कहा, आज मुझे पूरे 2 महीने हो चुके हैं और आपके कहने के मुताबिक अब आप मुझे मेरे 2 महीनों की तनख्वाह दे दें। मेरे मालिक ने कहा, अब मुझे जल्दी में कहीं जाना है और मैं पहले ही देर कर चुका हूँ। मैं शाम को जब वापस लौटूंगा तो तुझे तुम्हारे 2 महीनों की उजरत दे दूंगा। मैं फिर खामोश हो गया और शाम का इंतजार करने लगा। शाम को मेरा मालिक काफी देर से लौटा। जब वो हवेली आया तो मैंने उस घोड़े की देखभाल की, मालिक को घर से खाना ला कर दिया। जब मैं खाना लेकर वापस हवेली पर आया तो मेरा मालिक नशा की हालत में था। मैंने दोबारा फिर उससे अपनी रकम का मुतालबा किया तो मालिक ने कहा, आज रात तुम मेरे साथ यहाँ हवेली पर सो जाओ और सुबह तुम्हें रकम दूंगा, फिर तुझे छुट्टियाँ दूंगा और तुम अपने घर
गुजारा न सुल्तान मजम। पहले तो मैंने अपने मालिक को मना किया कि मैं सुबह आकर आपसे रकम ले लूंगा, तो मेरे मालिक ने जिद की कि नहीं, आज रात मेरे पास रुको, सुबह तुम्हें रकम जरूर दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। और इस वक्त रात भी काफी हो चुकी है, तो मैं भी अपने मालिक की बात मान ली और दिल में सोचा कि अब रात को इतनी देर हो चुकी है, अब घर जाऊंगा, सुबह फिर वापस आऊंगा, तो उससे बेहतर है कि सुबह इसे रकम लेकर घर चला जाऊंगा। और इस हवेली में मैं और मेरा मालिक हम दोनों ही थे। रात को मैं और मेरा मालिक एक कमरे में अलग अलग सो गए। रात को पिछले पहर जब मेरी नींद काफी गहरी हो गई, तो अचानक मेरा मालिक अपनी चारपाई से उठकर मेरी चारपाई पर आया, तो मैं डर गया। तो मेरे मालिक ने कहा कि डरो नहीं। तो मैंने मालिक से पूछा कि आप मेरी चारपाई पर क्या करने आए हैं? तो मुझे कहने लगा कि मैं तुझे तेरी उजरत देने आया हूँ। मैंने गुस्से से कहा क्या मतलब? तो ये मुस्कुराकर बोला मैं अभी अपनी चारपाई पर वापस चला जाऊंगा। अचानक मेरे मालिक ने मुझसे छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। तो उसी वक्त मेरे जहन में एक माह पहले वाला मंजर आ गया, जब मेरा मालिक और उसके साथ एक नौजवान लड़का सारी रात इस कमरे में सो रहे थे। और अगले दिन मेरे मालिक ने उसे 50 दिनार दिए और वो चला गया। मैंने मालिक से कहा कि मेरे साथ ये खेल पानी ना करो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, तुम अपनी चारपाई पर वापस चले जाओ। लेकिन मेरे मालिक ने मेरी कोई बात ना सुनी। फिर मैंने गुस्से से उसे कहा। मेरे मालिक ने मुझे थप्पड़ मारे और मेरे दोनों हाथ चारपाई के साथ बांध दिए। अचानक वो बूढ़ी बुजुर्ग गुस्से से बोली कि सुल्तानी मजम ये झूठ बोल रहा है, मेरा लड़का ऐसा नहीं था, ये सारे कबीले के लोग खड़े हैं, आप जिससे मर्जी पूछ लें, ये नौजवान झूठ बोल रहा है। सुल्तान ने बुजुर्ग को चुप करवा दिया और उस नौजवान से कहा कि तुम अपनी बात जारी रखो। नौजवान ने कहा सुल्तानी मजम, उसने मेरे हाथ बांधे और मुझसे जबरदस्ती जिना किया। मैं रोता चिल्लाता रहा, चूंकि हवेली के आसपास कोई घर नहीं था, यहाँ सिर्फ खेत और जानवर ही बांधे हुए थे। मेरे रोने चीखने चिल्लाने से ना कोई हवेली पे आया और ना ही मेरे मालिक को कोई तरस आया। अगली सुबह मेरे मालिक ने मुझसे कहा कि ये मैं तुझे 5 महीनों की उजरत दे रहा हूँ, अगर और रकम जरूरत हो तो मुझे बताना, तुझे और रकम भी दूंगा, लेकिन जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ रात को किया उसका तूने किसी से जिक्र नहीं करना, वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने जबरदस्ती 5 महीनों की तनख्वाह मेरे हाथ में थमा दी और मुझसे कहा जाओ और घर से खाना लेकर आओ। सुल्तान मजम, मैंने 2 माह की रकम अपने पास रखी और 3 माह की रकम अपने मालिक की तरफ फेंक दी और गुस्से से वहां से चला गया। जब मैं हवेली से निकलने लगा, तो हवेली के दरवाजे पर पड़ी हुई चारपाई पर मेरे मालिक का खंजर पड़ा हुआ था। मैंने वो खंजर उठाया और दौड़ता हुआ अपने मालिक के पीठ में घुसा दिया और उसे जहन्नुम वासिल कर दिया। सुल्तान मजम, मैंने उस कबीले वालों को भी ये सारी दास्तान सुनाई है। और मुझे जो मेरे मालिक ने रकम दी थी, वो इस वक्त इस बूढ़ी माँ के पास है, क्योंकि जब मैंने उसके बेटे को खंजर भोंक दिया, तो थोड़ी ही देर बाद ये अपने बेटे का खाना लेकर आई, तो इसने मेरे हाथ में खून से भरा हुआ खंजर देखा और अपने बेटे की लाश देखी, तो मुझे पकड़ लिया। फिर मुझे बहुत ज्यादा मार पीट के बाद आपके पास ले आई। फिर वह बुजुर्ग बोली सुल्तान मजम, ये लड़का झूठ बोल रहा है। जबकि लड़का रो पड़ा और रोते हुए कहने लगा सुल्तान मजम, मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि मैं सच पर हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये सुनते ही इब्न यूसुफ और सुल्तान अब्दुल मजीद रहमतुल्लाह अलैह समेत पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और सुल्तान किसी गहरी सोच में डूब गए। पूरी अदालत में कुछ देर खामोशी रही। फिर सुल्तान कबीले वालों और उस बुजुर्ग से पूछा कि तुम्हें मेरे पास आने में कितने दिन लगे? तो एक शख्स ने कहा 5 दिन का सफर तय करके हम आपके पास पहुंचे हैं। सुल्तान ने उस बूढ़ी बुजुर्ग से पूछा कि तुम्हारे बेटे की नमाज जनाजा कब हुई? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि आज से 5 दिन पहले सुबह के वक्त इस नौजवान ने मेरे बेटे का कत्ल किया और शाम के वक्त हमारे इमाम मस्जिद ने जनाजा अदा करने के बाद मेरे बेटे को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। सुल्तान ने इब्न यूसुफ से कहा कि मेरा घोड़ा तैयार करो और उन तमाम कबीले वालों से कहा कि तुम जिस सवारी पर आए हो उस सवारी पर सवार हो जाओ और अपने एक सिपाही से कहा कि इस नौजवान को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर हमारे पीछे पीछे चले आओ।
और वो बुजुर्ग और तमाम कबीले वाले उस नौजवान लड़के और सुल्तान अब्दुल मजीद को लेकर अपने कबीले की तरफ वापसी का सफर शुरू कर दिया। उस बुजुर्ग और इब्न यूसुफ ने सुल्तान से कहा कि आप हमारे कबीले में जाकर क्या करना चाहते हैं, क्यों इस फैसले के हल के लिए हम तमाम कबीले वालों के आपके पास लाए हैं। आपने जो फैसला करना है आप यहीं पर कीजिए। तो सुल्तान अब्दुल मजीद रहमतुल्लाह अलैह ने उस बुजुर्ग और इब्न यूसुफ से कहा कि यह नौजवान लड़का कहता है कि इसके मालिक ने इसके साथ ज्यादती की थी, जिसकी वजह से इसने उसका कत्ल किया, जबकि इसके मालिक की बूढ़ी माँ कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं था और उस नौजवान ने मेरे बेटे से जायद रकम हथियाने की खातिर उसका कत्ल किया है, क्योंकि इस वक्त इसके पास कोई भी गवाह मौजूद नहीं जिसने अपनी आंखों से ये सारा माजरा देखा हो। इसलिए मैं बगैर किसी सबूत के कोई फैसला कैसे कर सकता हूँ, जो कि मैं बहुत डरता हूँ कि कहीं मेरा अल्लाह मेरे किसी गलत फैसले पर मेरी पकड़ न कर ले। लिहाजा इस मुकदमे का फैसला इस कब्रिस्तान में जाकर ही होगा, इसलिए चुपचाप इस कब्रिस्तान में पहुँचने के लिए सफ़र शुरू करें। मुख्तसर ये कि मज़ीद 3 दिन का सफ़र करने के बाद तमाम कबीले वाले वो नौजवान लड़का और सुल्तान अब्दुल मजीद रहमतुल्लाह अलैह उस कब्रिस्तान में पहुंच गए। सुल्तान ने चंद लोगों से कहा कि इस बुजुर्ग के बेटे की कब्र कौन सी है और जिस इमाम मस्जिद ने नमाज जनाजा अदा की थी उसको भी बुला लाओ और उसको खोदना शुरू कर दो। चंद लोगों ने कुदालें मंगवाई और उस कब्र को खोदना शुरू कर दिया। जब उस बुजुर्ग के बेटे की कब्र को खोदा तो तमाम कबीले वालों और उस बुजुर्ग के रोंगटे खड़े हो गए। हर शख्स हैरान हो गया क्योंकि कब्र में मैयत यानी लाश मौजूद नहीं थी। ये देखकर वो बूढ़ी बुजुर्ग धाड़े मार मार कर रोने लगी और बाकी तमाम कबीले वाले सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे की तरफ देख रहे थे कि ये सब क्या माजरा है और सुल्तान ने ये कब्र क्यों खुदवाई और मैयत कहाँ चल गई। सुल्तान ने उस बुजुर्ग और तमाम कबीले वालों को मुखातिब करके कहा, ये नौजवान सच कह रहा है, इसके मालिक ने इसके साथ जबरदस्ती ज्यादती की थी। वो बुजुर्ग सुल्तान से कहने लगी कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे बेटे ने इस नौजवान के साथ ज्यादती की है। तो सुल्तान ने कहा कि हम सब दीन इस्लाम को मानने वाले हैं और मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। एक दफ़ा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में एक नौकर लड़के ने अपने मालिक को कत्ल किया। ये मामला जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लड़के से कत्ल की वजह पूछी। लड़के ने कहा, मेरे मालिक ने मेरे साथ ज्यादती की है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास ये इस किस्म का पहला मुकदमा था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने केस हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास भेजा। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह बात सुनकर फरमाया, आप मेरे पास तीसरे दिन आना, आपका फैसला करूंगा। तीसरा दिन जब आया तमाम कबीले वाले हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास हाजिर हुए तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, इसकी कब्र खोदो। कब्र खोदी तो उस नौकर के मालिक की कब्र में उसकी मैयत की ना थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, लड़का सच्चा है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अक़दस है, जो मर्द के साथ बदफेली करता है अल्लाह ताला उसको तीसरे दिन कब्र से उठाकर दूध की कौम में डाल देता है। अल्लाह हम सब को इस लानत से महफूज रखे। इसके बाद सुल्तान ने कहा, यह बात काबिल गौर है कि फ़िल और मफ़ूल दोनों के लिए ये सख्त वईद है, क्योंकि ये लड़का ताकत में अपने मालिक से कम था, लिहाजा इसके मालिक ने ज़बरदस्ती इसके साथ बदकारी की, इसलिए ये लड़का सच्चा है और इसे आज़ाद कर दिया जाए। सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये तो खुदा का शुक्र है कि दीन इस्लाम में अल्लाह ताला ने हर मसले का और हर इंसान की ज़िंदगी का कोई भी हादसा क्यों ना हो, इस्लाम हर लिहाज से दीन और दुनियावी लिहाज से रहनुमाई फराहम करता है। फिर वो लड़का अपने घर को लौट गया और तमाम कबीले वाले खामोशी से अपने घरों को लौट गए और सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस दीन इस्लाम और शरीयत के मुताबिक एक अनोखी और मुश्किल तरीन मुकदमे का इस तरह हल निकाला कि हर शख्स मुतमिन हो गया। आपको आज का ये सच्चा इस्लामी वाक़या कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।